सबसे पहले तो ये जानना है कि what drew you towards sleep medicine? Because sleep medicine and sleep apnea is an important part and subset of respiratory medicine. Majority of us doesn't know ये जो snoring उसको बीमारी भी माना जाता है. Sleep apnea is not a new thing. हमें लगता है कि ये नई चीज है, पर अगर हम देखेंगे हमारी मैथोलॉजी में कुंभकर्ण का एग्जांपल ले लीजिए. बहुत गुस्सा आना, बहुत खाना, सोते रहना is not normal. So anyone who's snoring जिसको sleep apnea शायद नहीं भी है, but then there is some respiratory discomfort. एक फन फैक्ट है, अब्रॉड में snoring and sleep apnea reason of divorce. So one important advice that you would like to give to our viewers. So obesity is a very important factor. Have you seen in your practice where sleep apnea, if it goes untreated, some fatal reactions to? Yes, हम रोज देखते हैं. रोज एक समय के बाद न्यूरोलॉजिकल स्ट्रोक, इस्कीमिक हार्ट डिजीज के साथ आ जाते हैं और तब करवाते हैं. तो हमें चैलेंजेस एज अ पल्मोनोलॉजिस्ट झेलना आता है. So welcome Dr. Avya Bansal. We all know that how big of a name you are at such young age, and welcome to our show which is Beyond the Pill, where we say that where health meets the conversation. So we are delighted to have you with us today. Thank you so much for having me here. It's a pleasure. Today our topic is sleep apnea or sleep. Because we know that you are a sleep medicine specialist as well, along with a renowned pulmonologist. So no one better than you could do the justice to the topic. Thank you. First question, सबसे पहले तो मुझे आपसे ये जानना है कि what drew you towards sleep medicine? Essentially, what drew me towards respiratory medicine is what I would like to talk about, because sleep medicine and sleep apnea is an important part and subset of respiratory medicine. So as I was growing up as a child, I had tuberculosis. I had pre-XDR tuberculosis, which was pretty bad at that point of time. There was a 40 to 50% success rate of treatment outcomes. I was on medication for about 24 months. Okay. And at the end of therapy, I understood the pain and effect which medicines have on your entire body and how tough it was to procure medicines. Affordability was an issue back then. The cost of therapy was very high. So those issues stuck with me. My grandmother, unfortunately, she passed away, was an asthmatic for the longest time. She was poorly managed. She had a lot of myths about inhalers, and I always grew up seeing her breathless, wheezy. My mother is an asthmatic that's been passed on to her. So you see, I've been surrounded by respiratory diseases from a child, and ever since I've been sensible enough to understand what's happening around me. And that's why when I had the opportunity to pick a specialty, and I was fortunate enough to get respiratory medicine, and sleep medicine became a subset of it, and something which is neglected but still very close to me. So I've pursued it. So you are like a blessing to the family, I can say. I think so. They are well controlled now, so they're quite happy. Yeah, especially my mom. She's not breathless anymore. She can walk. She runs, exercises. Super. The entire myth and stigma about inhalers has gone. Super. And she's doing well. Super. That's really great. There's always a blessing in disguise for everything that happens. Yes. So when we talk about sleep medicine, जैसे awareness की बात होती है, तो we don't, majority of us doesn't know कि ये जो snoring या रात को खराटे लेना उसको बीमारी भी माना जाता है. People understand it कि ये normal है, मुझे सिर्फ खराटे लेने की आदत है. But then what is the science behind it? और वो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कौन सी इंटेंसिटी पे हो रहा है, अभी तक इस चीज की अवेयरनेस इज रियली पुअर इन आवर कंट्री स्पेशली. आई एग्री. सो आपने जो बताया वो बहुत ज़रूरी है. स्लीप इज सच एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट. इतना ज़रूरी महत्वपूर्ण पार्ट हमारी लाइफ का है. 6 से 10 घंटे या एवरेज 8 घंटे मान के चलिए एक इंसान सोता है जी, तो उसकी लाइफ का 33% हिस्सा सोने में जाता है. और वो 33% हिस्सा उसको लीस्ट इंपॉर्टेंस देता है. करेक्ट. बाकी 16 घंटे में वो क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है, क्या अचीव करना चाहता है, इज इन द लाइमलाइट. एंड जो कांस्टेंट फैक्टर है जो कभी चेंज नहीं होने वाला है, दैट स्लीप इज निग्लेक्टेड. ब्यूटीफुली सेड सर. स्लीप एपनिया इज नॉट अ न्यू थिंग. ओके. हमें लगता है कि ये नई चीज है, पर अगर हम देखेंगे हमारी मैथोलॉजी में कुंभकर्ण का एग्जांपल ले लीजिए. करेक्ट. वी नो फॉर अ फैक्ट दैट बहुत गुस्सा आना, बहुत खाना और सोते रहना इज नॉट नॉर्मल. यस. इट हैज बीन टोल्ड टू अस और हमें सिखाया गया तब से कि अच्छी चीज नहीं है. नहीं. इतना गहरी नींद में आप सो रहे हैं, खराटे मार रहे हैं कि आपको होश भी नहीं क्या चल रहा है. मेडिकल टर्म क्लाइन-लेवाइन सिंड्रोम उसके बाद आया है, बट हमारे शास्त्रों में हमको बताया गया है कि ये अच्छी चीज नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है. ओके. पेशेंट्स हमेशा कहते हैं कि स्नोरिंग तो काफी समय से चल रहा है, इट्स अ साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, like having a belly is a sign coming from a good family. तो ये सारे myths हैं. Correct. छोटे बच्चे snore नहीं करते and they have the deepest sleep. Yes. तो बड़े क्यों snore करते हैं? That's right. Snore करना अच्छी चीज नहीं है. Snoring is a symptom. Right. Okay.
all snoring patients need not have sleep apnea. Similarly, all sleep apneic patients may not snore. Okay. Snoring upper respiratory system से हो सकता है, हाँ, nasal हाँ, polyp हो सकते हैं, sinus हो सकता है, सर्दी हो सकती है, Okay. या स्नोरिंग हो सकता है जब रेस्पिरेटरी पैसेज ब्लॉक हो जाता है एप्निक एपिसोड में. Okay. Okay. तो इसका इवैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी है, Right. क्योंकि धीरे 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 ये हमारे ऑर्गन्स पे, लंग्स से, हार्ट से, ब्रेन से, सिस्टेमिक सर्कुलेशन से, कोमॉर्बिडिटीज, जो मेटाबॉलिक डिजीजेस होती हैं, सबको बढ़ाते रहता है. That's right. एंड इट हैज़ अ लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन एंड कॉम्प्लिकेशन ऑन एवरी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी. Body does. So anyone who's snoring, मतलब जिसको sleep apnea शायद नहीं भी है, but then there is some respiratory discomfort, इसीलिए वो इंसान snore कर रहा है. करेक्ट. स्नोरिंग हो सकता है नाक टेढ़ी हो जाए, डिविएटेड नेजल सेप्टम की वजह से हो Okay. सकता है, Okay. सर्दी है, नाक में कफ जम जाता Okay. है, साइनसाइटिस हो Okay. सकता है. तो Okay. ज़रूरी नहीं है कि वो स्लीप एपनिया ही हो. जी. स्नोरिंग नॉर्मल नहीं है, और अगर कोई इंसान या बच्चा भी काफ़ी समय स्नोर कर रहा है, तो उसका एक चेकअप या इवैल्यूएशन कर लेना चाहिए फिजिशियन के साथ में, टू अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ स्नोरिंग. Okay. अगर स्लीप एपनिया के सिम्टम्स हमें लग रहे हैं, तो पल्मोनोलॉजिस्ट या ईएनटी स्पेशलिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट जो स्लीप मेडिसिन में इंटरेस्ट रखता है, स्लीप Okay. एपनिया में इंटरेस्ट रखता है, Okay. वो इवैल्यूएशन फिर पेशेंट का कर सकता कर सकते हैं. Urologist you said. है. न्यूरोलॉजिस्ट. Okay. This is how snoring is connected to स्लीप एपनिया. sleep apnea. Yes. Okay. So this is completely myth कि अगर कोई snore कर रहा है तो वो बहुत अच्छी नींद ले रहा है. ऐसा बिल्कुल नहीं ऐसा है. बिल्कुल भी नहीं है. Okay. अच्छी नींद का स्नोरिंग से कोई रिलेशन नहीं है. Correct. थकावट के कारण भी कभी कभी स्नोरिंग आ सकती है, मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, लैक्स हो जाते हैं, एयरवे बंद हो जाता है, या मौसम बदल गया है, सर्दी आ गई है जिसकी वजह से नाक से हल्की स्नोरिंग आ रही जी, है. तो जी. ये सारे हमारे को लक्षण देते हैं, हमें बताते हैं कि कुछ नॉर्मल से डिविएट हो रहा है. Okay. हमारा सिस्टम स्लीप पैथोलॉजी नॉर्मल नहीं चल रही है, स्लीप Okay. फिजियोलॉजी नॉर्मल नहीं है. Okay. शॉर्ट टर्म के लिए है तो इग्नोर कर सकते हैं, बट अगर लॉन्ग टर्म चल रहा है, क्रॉनिक जी, हो रहा है, जी, बढ़ जी. रहा है या बरकरार रह रहा है, जी. तो हमें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. जैसे कि if someone who's snoring would not really understand कि वो snore कर रहा है, so उसके अलावा कोई डिस्कम्फर्ट सिम्टम्स है जिससे वो खुद पता लगा सके कि कुछ तो डिस्कम्फर्ट हो रहा है जिससे मेरी नींद सच्ची में हैम्पर हो रही है. जो पेशेंट रहते हैं ना, हाँ. जब तक उनको क्रॉनिक सिम्टम्स नहीं होते, हाँ. उनको पता ही नहीं चलता. एग्जैक्टली. हाँ. हमारे पास पेशेंट्स को लाया जाता है उनके स्पाउसेस. तो स्पाउस हमेशा कंप्लेन करता है कि मैं इनके स्नोरिंग से परेशान हूँ. राइट. एक फन फैक्ट है, अब्रॉड में snoring and sleep apnea has also been documented for a reason of divorce. It's that My bad. God, Exactly. हमने काफी टाइम देखा है कि पेशेंट्स अलग अलग रूम में सोते हैं, Yes. बिकॉज वो स्नोरिंग टॉलरेट नहीं कर पाते अपने पार्टनर की. करेक्ट. तो तब वो लेके आते हैं डॉक्टर के पास. पेशेंट को लक्षण होते हैं काफ़ी समय बाद, क्योंकि जब रात में एपनिया होता है, ऑक्सीजन गिर जाता है, लो ऑक्सीजन ब्लड में सर्कुलेट करता है, कम ऑक्सीजन ब्रेन को मिलता है, तो उनके सिम्टम्स होते हैं दिन में सुस्तपना, डे टाइम लेजीनेस, डे टाइम सॉम्नोलेंस, फ्रेश नहीं लगना, स्टीयरिंग व्हील गाड़ी चलाते चलाते सो जाना, क्रॉनिक हेडेक होना, माइग्रेन होना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, अनएक्सप्लेन कारण है ब्लड प्रेशर बढ़ने का, कार्डियक रिस्क फैक्टर्स, इस्कीमिक हार्ट डिजीज, सीजर, स्ट्रोक. जब ये सारे सिम्टम्स या बीमारियां आती हैं तब पेशेंट खुद से आता है. करेक्ट. उसके बट पहले फर्स्ट में जब पेशेंट हमारे पास लाया जाता है, वो हमेशा स्पाउस या कोई दोस्त लेके आता है जो बताता है कि इनकी नींद में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ये नॉर्मल नहीं है, राइट. आप बताएं कि आगे हमें क्या करना है. दैट्स ट्रू, बिकॉज वो खुद भी नहीं है, वो खुद एक्सेप्ट समझ ही करते नहीं. एक्सेप्टेंस इज नॉट देयर, यू नो, दे डोंट फील कि एक रेजिस्टेंस बैरियर होता है. जब आप किसी को बोलो कि आप स्नोर कर रहे हैं और स्नोरिंग की वजह से आपको शायद स्लीप एपनिया हो सकता है, अपर एयरवे इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, तो रेजिस्टेंस आता है जी. क्योंकि उनके मन में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, करेक्ट. वो अपनी लाइफ नॉर्मल तरीके से जी रहे हैं, करेक्ट. दे आर एफिशिएंट, दे आर एबल टू परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज, वो खा पी रहे हैं, उनको कोई बीमारी नहीं है, चेकअप की रिपोर्ट सारी नॉर्मल आ रही है, तो उनको कभी लगता है कि पार्टनर नैक कर रहा है, यस, ओवर एस्टिमेट कर रहा है, एग्जैजरेट कर रहा है, yes. तो तब उनको हमें समझाना जरूरी है कि मान के चलिए ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जी. हम आपका टेस्ट कर रहे हैं देखने के लिए कि बीमारी है या नहीं है. ओके. ये रूटीन स्क्रीनिंग टेस्ट आप इसको समझिए. ओके. अगर बीमारी नहीं निकली तो वी आर वेरी हैप्पी. करेक्ट. और अगर निकली है तो क्या हम वेट करें कि ये कॉम्प्लिकेशन करे या प्रिवेंटिव मेडिसिन में इसको करेक्ट करें. दैट इज करेक्ट. तो जब हम इस तरीके से उनको समझाते हैं तो उनका रेजिस्टेंस लेवल कम हो. फिर हम उनको बताते हैं आप खुद पढ़िए इसके बारे में, हम आपको समझाते हैं, हम एक्सप्लेन करते हैं. जब आप पेशेंट के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, आप उनको एक एक चीज एक्सप्लेन करेंगे, उनके कैसे भी सवाल, रेपिटेटिव सवाल, बेमतलब सवाल का पेशेंटली जवाब देंगे, तब उनका ट्रस्ट बढ़ेगा. और जब ट्रस्ट बढ़ेगा तो वो आपकी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे. दैट इज ट्रू. सो आप कौन से मेजर चैलेंजेस आपने देखे हैं इन द पेशेंट्स इन योर प्रैक्टिस? सबसे पहला चैलेंज हम देखते थे शुरुआत की प्रैक्टिस में कि पेशेंट्स को जब हम बोलते थे आप एस्थमेटिक है या सीओपीडी बीमारी है और इनहेलर्स लेना है, तो वो शुरुआत तब से होती थी.
तो those were the first challenges we encountered. तो हमें Correct. challenges as a pulmonologist से Okay. झेलना हाँ. आता है. Okay. Respiratory medicine only came into the forefront, fortunately or unfortunately, because of the COVID pandemic. Yes. जब काफी लोगों को पता Yes. चला कि pulmonologist Correct. भी एक branch of medicine That's होती true. है That's true. और सांस लेने की तकलीफ सिर्फ हार्ट रिलेटेड नहीं नहीं, होती, correct. लंग्स रिलेटेड भी होती है. Right. ये चैलेंजेस को ओवरकम करके हम आते हैं हमारे स्लीप पेशेंट्स के पास. सबसे पहला चैलेंज होता है एक्सेप्टेंस. Right. एक्सेप्टेंस के बाद आता है उनको समझाना कि ये टेस्ट करना जरूरी है. जी. टेस्ट करने के बाद सीपैप लगाना जरूरी है. जी. CPAP is a very, I would say, long ask or a long task for them because वो टेस्ट से इतना घबरा जाते हैं. हेड टू टो तारे लगती हैं, इलेक्ट्रोड्स लगते हैं, क्योंकि मॉनिटरिंग करना जरूरी है, पता करना जरूरी है कि सच में स्लीप में हो रहा है या आंखें खुली हैं. स्कोर चेंज हो जाता है. Right. तो जब हम पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं कि ये टेस्ट है, ऐसा होने वाला है, ये सारी चीजें लगेंगी आपके शरीर पे, घर पे भी हो सकता है, हॉस्पिटल में भी हो सकता है, लेवल 1 लेवल 2, तो वो थोड़ा प्रिपेयर हो जाते हैं. आप एक बैटल फील्ड में प्रिपेयर होके जाएंगे या अनप्रिपेयर्ड होके जाएंगे, आपका आउटकम अलग रहता है. That is true. That is सेम true. हम फिलोसफी प्रैक्टिस में फॉलो करते हैं, समझाते हैं. हम्म. फिर जब हम उनको सीपैप देते हैं, हम्म. सिंपल इंस्ट्रक्शंस देना बहुत जरूरी है. आप एक मशीन पेशेंट को नहीं दे सकते, वो उनके लिए खिलौना है Right. और उनको पता नहीं है उसके साथ क्या करना है. Right. सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दें, बताए कैसे यूज करना है, उसको मेंटेन कैसे करना है, सर्दी हुई तो क्या करना है, ड्राइनेस हुआ तो क्या करना है. आपको समझाना जरूरी है कि शुरुआत में आपका जो सीपैप का मास्क है वो शायद अनकंफर्टेबल हो. अगर अनकंफर्टेबल होता है तो दूसरा मास्क लगाना है. अलग अलग मास्क आते हैं. Okay. ये सारी चीजें उनको समझाना जरूरी है. Right. Right. इसको हम ट्रबल शूटिंग कहते हैं. Okay. 7 से 28 दिन लगते हैं पेशेंट्स को अकस्टम होने के. इसलिए हम उन्हें हमेशा मशीन शुरू करने के 4 से 5 हफ्ते बाद बुलाते हैं, एक बारी चेकअप के. मशीन भी स्मार्ट है. पेशेंट्स हमें बोलते हैं कि हमने लगाया है, बट असल में उन्होंने नहीं लगाया रहता. सो वी हैव टू टेल देम आल्सो कि आप हमें गलत नहीं बता सकते जी. क्योंकि मशीन में सारा डेटा स्टोर रहता है. वो हमें बताएगी आपने लगाया है, कब लगाया है, कब निकाला है और आपको कितना फायदा हुआ. That's right. That's right. और जब एक सिम्टोमेटिक पेशेंट हमारे पास आता है स्लीप एप्निया का और वो मशीन यूज करता है, देयर इज अ giant transformation which we see in them. That's beautiful. Yeah. They become more alert, they are more fresh. It helps in weight loss Hmm. because वो दिन भर सुस्त नहीं है, they are more active. Right. Metabolism correct हो जाता है, Right. blood pressure starts coming down. Right. तो सारी जो metabolic बीमारियां हैं, dyslipidemia, hypertension, to a certain extent diabetes also, because you're more alert, you're more Correct. active. Correct. It has a positive impact on all other systems. Right. Plus they have a fresher approach, fresher outlook. They're more energetic, they're more positive. True. And that's the time they understand the importance. These are for symptomatic patients. और जो पेशेंट्स रहते हैं कि जिनको कोई सिम्टम नहीं थे, खाली खराटों की वजह से आए, डायग्नोस हुआ, उनके पार्टनर बहुत खुश होते हैं, तो उनकी मैरिड लाइफ बेटर होने लग जाती है. So indirectly they become happier कि हाँ हमारी मैरिड लाइफ is fine, our partners are not cribbing, so we are quite happy at the end of the day. You know, so as you said that some respiratory relation रहता ही है. So 2 things. First is कि asthma patients या फिर any COPD patients or any lung disorder, I mean lung disease patient, are they more prone to get this sleep apnea? And then second thing is obesity, I feel is a big reason for sleep apnea. So obesity is a very important factor. Elevated BMI is directly proportional and contributory and causative of sleep apnea, yes. Neck circumference, having a short neck, having a lot of fat around the neck, a facial dysmorphism, a short jaw, a lesser length of a palate, upper airway obstruction. So these are all contributory factors. Weight एक direct proportion है, direct relation है, but weight सिर्फ एक इकलौता factor नहीं है. Okay. तो जब हमारे पास obese patients आते हैं, हमें उनको बताना जरूरी है कि हाँ अगर आपका weight loss हुआ तो डेफिनेटली आपका स्लीप एप्निया बेटर होगा. Okay. कंप्लीटली जाएगा या नहीं जाएगा ये बाकी फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है. That's right. That's right. ये हमें उन्हें काउंसिल करना बहुत जरूरी है शुरुआत में. Okay. साथ ही साथ स्लीप एप्निया से नेचुरली वेट लॉस में भी हेल्प होती है. Okay. बिकॉज अलर्टनेस एक्टिविटी बढ़ जाती है. That's it. अबाउट 1 to 3% ऑफ वेट लॉस इज एट्रीब्यूटेड बाय रेगुलर यूज ऑफ सीपैप इटसेल्फ. Okay. Okay. जहां तक रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात आती है विद रिस्पेक्ट टू स्लीप एप्निया, डायरेक्ट कनेक्शन है. स्लीप एप्निया में सांस रुक जाती है. जो पेशेंट्स को ऑलरेडी श्वास की बीमारी या लंग्स की प्रॉब्लम है, अगर उनकी सांस रुक जाए उनके बॉडी में असर तो होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट होगा. सांस रुकेगी, लंग्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा. और जो पेशेंट्स के लंग्स ऑलरेडी वीक हैं, जो ऑलरेडी रात में ऑक्सीजन जिनका कम होने की संभावना है, वो और वर्सन होगा. So in your practice, have you seen that patients with asthma or especially kids with asthma later on in life can
do they develop sleep apnea? So asthma itself being a risk factor for sleep apnea is not documented, but हाँ Okay. अगर asthma का इलाज ठीक से नहीं हुआ हो, इनके adenoids बढ़ गए हो, माउथ खुला हो, बड़े बड़े टॉन्सिल्स हो गए हो रिकरेंट इन्फेक्शंस की वजह से, बिकॉज द asthma is not corrected properly, या इनको बचपन में काफी ऐसी मेडिसिन दी हो जिनसे इनका वेट बढ़ गया हो, तो वो एक इनडायरेक्ट कॉज कर सकता है. बट हाँ, एस्थमा वर्सन होता है स्लीप एपनिया से. इसलिए जब भी हमारे पास एस्थमेटिक पेशेंट आते हैं जो वेल कंट्रोल्ड नहीं है या इवन अपफ्रंट आते हैं फर्स्ट टाइम, तो हम हमेशा आई इन माय प्रैक्टिस इंश्योर दैट वी रूल आउट एंड एक्सक्लूड स्लीप एपनिया, क्योंकि अगर वो आज एक फैक्टर नहीं बन रहा, आगे जाके फैक्टर बन सकता है. स्क्रीनिंग टूल होती है, हम स्टॉप बैंक क्वेश्चनर का इस्तेमाल करते हैं, पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, स्पाउस से बात करते हैं और समझते हैं कि स्लीप एपनिया हो सकता है या नहीं. अंडरस्टैंड. अगर साइंस एंड सिम्टम्स नहीं है, क्वेश्चनर नेगेटिव है, तो टेस्ट हम नहीं एडवाइस करते. रूटीन प्रैक्टिस में हर एक एस्थमेटिक को टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बट हर एक एस्थमेटिक या सीओपीडी पेशेंट में या आईएलटी पेशेंट में ये ध्यान रखना जरूरी है कि हाँ, स्लीप एपनिया एक इम्पॉर्टेंट कोमॉर्बिडिटी है और उसको अर्ली डायग्नोज करना, करेक्ट करना बहुत जरूरी है, वरना ये बीमारी और तेजी से बढ़ती जाए. इट इज अ बिग स्टिग्मा आल्सो नाउअडेज बिकॉज when we travel in the flights also, so many people sleep and they are unaware. एक तो इतने सारे लोग हैं, ऊपर से they keep their mouth open and they sleep. I've seen so many people with loud snoring, and then after having awareness about this, I start relating कि I think this man is having sleep apnea and maybe he's not aware of it. जो 10 साल पहले अवेयरनेस थी, जो 5 साल पहले अवेयरनेस थी और जो आज अवेयरनेस से काफ़ी फ़र्क हो गई है. हम रियलिटी टीवी भी देखते हैं, वहाँ पे भी हमने देखा है लोगों को मशीन इस्तेमाल करते हुए सोते समय, तो लोगों में अवेयरनेस बन रही है. शुरुआत में स्टिग्मा था, मैं मशीन कैसे लेके जाऊँगा, रात में सोना है, मुझे ये लगा कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, दे विल प्रोबेबली थिंक दैट समथिंग ग्रॉसली रॉन्ग विथ मी. ये धीरे धीरे हट रहा है. स्टिग्मा हटता है एजुकेशन से. 100 साल पहले रीति रिवाज सही गलत जैसे थे, वो स्टिग्मा थे जैसे भी थे, तो एजुकेशन से ही हटे. तो जैसे जैसे हम लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, एजुकेशन क्रिएट करेंगे, उनको समझाएंगे कि नहीं आपको ये करना जरूरी है, वो चेन रिएक्शन करके आगे जाके 10 लोगों को समझाएंगे. तो जो इंसान स्लीप एपनिया के जिसको लक्षण है और जो डिनायल में है, अगर वो एक पेशेंट से सुनेगा कि नहीं आपको ये इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो ज्यादा सक्सेसफुल होगा टेस्ट कराने में रादर देन डॉक्टर से सुनने, क्योंकि उसे लगेगा कि डॉक्टर में कोई के पास कोई बेनिफिट है या कोई अल्टीरियर मोटिव है. बट एक पेशेंट जब उसको बताएगा या एक क्लोज रिलेटिव उसको बताएगा या रिश्तेदार या वेल विशर बताएगा, तब वो उसको ज्यादा सीरियसली ले सकता है. करेक्ट, दैट इज इम्पोर्टेंट. आई मीन यू नो दैट इज द रीजन आज जो इन्फ्लुएंसर्स है दे आर मोर ट्रस्टेड देन द डॉक्टर्स वॉइस ऑन सोशल मीडिया. इसलिए करेक्ट इन्फ्लुएंसर होना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज दे आर ट्रस्टेड. तो अगर वो करेक्ट एडवाइस देंगे तो करेक्ट मैसेज पहुंच पाएंगे लोगों को. उनकी रीच ज्यादा है. काम हमें करना है, हम जैसे लोगों को करना है, बट हम हर एक जगह पहुंच नहीं पाएंगे. वहां पे सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर्स, government agencies, government bodies, awareness camps, awareness campaigns, advertising becomes so important to reach each and every nook and corner of the country, to tell them about each and every illness which is there and educate them and create awareness. That's right. हमारा काम है लोगों को sensitize करना. Correct. जब लोगों को आप sensitize करते हैं तो वो सामने से आपके पास आते हैं. Yes, and when you were talking about the management part of it, I know, I mean, it's as you mentioned कि थोड़ा starting में adherence को लेके होता है, but then जैसे 1 महीना 2 महीना 3 महीना they get used to it, they get tuned with it and they start feeling better. So have you seen cases where patients, because I know that even we people are like that कि we tend to stop the therapy, हमें लगता है कि अभी इससे थोड़ा better हो गया, so I would not maybe need it. Stopping therapy, जो एक पेशेंट लंबे समय से मशीन यूज कर रहा है उसके चांसेस बहुत कम होते हैं. Okay. बिकॉज वो स्टॉप करके देखते हैं. अच्छा, और जब वो स्टॉप करके देखते हैं अगले दिन वो ड्राउजी रहते हैं, थके हुए रहते हैं और उनको फ्रेश नहीं लगता. तो उनको पता है वो मशीन यूज करनी है. अच्छा, डॉक्टर के पास आना बंद कर देते हैं. अच्छा, बट मशीन नहीं छोड़ते. तो ड्रॉप आउट रेट्स ऑन पीपल हु बीन यूजिंग द मशीन बहुत कम रहता है. इंसान में जब प्रॉपर सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, दे हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट, तो हम उनको सामने से बोलते हैं जब बॉडी वेट 10% फ्लक्चुएट करे, 10% बढ़ जाए, 10% कम हो जाए, तो आपका प्रेशर रिक्वायरमेंट, मशीन रिक्वायरमेंट चेंज हो जाता है, एपनिया इंडेक्स, आरडीआई चेंज हो जाता है. तब आपको वापस आना है. वी नीड टू इवैल्यूएट यू वंस अगेन and understand whether the machine is still required and optimize the settings for you. तो ये काउंसिल करना जरूरी है. Correct. और once the patients are accustomed to it, they start using it and they're comfortable and they see the difference. वो छोड़ते नहीं. So adherence is good here. Adherence is good once the initial 4 acceptance weeks it comes, and the initial hurdle is crossed of the mental block or the psychological block. Claustrophobia होता है,
अजीब लगता है, लगा के कैसे सोऊँगा, Mhm. मैं पेट पे सोता हूँ, साइड में सोता हूँ, Correct. काफ़ी सारे इश्यूज़ रहते हैं। Right. बट जब थोड़ा समय बीत जाता है, तब things get much better from their aspect. They start Mm. seeing the Mm. difference, they get Mm. much better with the Mm. machine, Mm. and Mm. they do come back happier. That's a good thing, you know. But then, anyone who's with sleep apnea is been directly given the sleep app No. medicine, or there are some other line of treatment as well. So there are other modalities of treatment. हमें Mhm. पहले देखना है कि स्लीप एपनिया है तो कितना है, Mhm. माइल्ड है, मॉडरेट है, सिवियर है। इसके साथ साथ पेशेंट में कोई कोमॉर्बिडिटी आई है या नहीं आई है, कार्डियक इशू, न्यूरोलॉजिकल इशू आया है, हाइपरटेंशन आई है, नहीं आई है, पेशेंट्स को सिम्टम्स है या सिम्टम्स नहीं है, Okay. क्या हमने स्क्रीनिंग पॉइंट ऑफ व्यू किया है बिकॉज ऑफ कोमॉर्बिडिटीज या हमने सिम्टम पॉइंट ऑफ व्यू, पहले ये एस्टैब्लिश करना जरूरी है। Okay. साथ ही साथ हमें बाकी कोमॉर्बिडिटीज अपर एयरवे को चेक करना जरूरी है। Okay. ENT इवैल्यूएशन, रूलिंग आउट टॉन्सिल्स, a short palate, having an upper airway obstruction, massive sinusitis, Right. ये सारे contributory factors हैं। Okay. तो अगर हमारे पास एक ओबीस इंसान आता है जिसमें ये सारी फैक्टर्स नहीं है या जिसका शॉर्ट नेक है, जिसके लिए हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते, तो हम सीपैप थेरेपी एडवाइस करते हैं। बट हमारे पास अगर एक फिट यंग इंसान आता है जो जिसका BMI नॉर्मल है, जो एक्सरसाइज करता है और जिसके मैसिव टॉन्सिल्स है जो उसका एयरवे को ब्लॉक कर रहे हैं, तो उसको सीपैप दे के क्या होगा, आपको उसको टॉन्सिल्स निकालना है। Okay. तो ये हमें स्लीप एंडोस्कोपी से पता चलता है। Okay. तो स्लीप एंडोस्कोपी बेसिकली क्या होता है, पेशेंट की नींद में एक एंडोस्कोप जाता है और वो एयरवे को चेक करता है कि कोई मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन तो एयरवे का नहीं हो रहा। ये हम उन पेशेंट्स में एडवाइस करते हैं जिनमें हमें ओबिसिटी या नॉन करेक्टेबल चीज़ें लगती नहीं है। Okay. जहाँ हमें लगता है कि नहीं ये फिट नहीं कर रहा है क्लासिकल स्लीप एपनिया पेशेंट में, बट इनको स्लीप एपनिया आया है, उनमें स्लीप एंडोस्कोपी एडवाइस करना मैंडेटरी हो जाता है, एडवाइजेबल हो जाता है, क्योंकि सीपैप हम दे रहे हैं बट कारण कुछ और ही होगा उनके स्लीप ऐप। could be. So ऐसा नहीं है कि अगर जैसे इनहेलर्स हम यूज करते हैं उससे ही, अगर जैसे अस्थमा में भी या फिर बाकी रेस्पिरेटरी इश्यूज में भी रात में थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। करेक्ट। So if the patient is taking inhaler therapy or inhalation or nebulization, तो sleep apnea उससे कंट्रोल नहीं हो सकता। नहीं, स्लीप एपनिया कंट्रोल नहीं होगा। स्लीप एपनिया होता है ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, विच इज अपर एयरवे। सांस की नली बंद हो जाती है तो हवा नहीं जाती। इनहेलर्स का काम है सांस की नली जो एयरवेज है उनको डायलेट करना और उनमें इन्फ्लेमेशन रोकना। अंडरस्टैंडिंग। डेफिनेटली अगर आपका एस्थमा कंट्रोल में नहीं है तो आपका स्लीप एपनिया वर्स हो सकता है और आपके स्लीप एपनिया से आपका एस्थमा वर्स हो सकता है। ओके। एंड यू नो देयर आर पीपल जो पूरी जिंदगी निकाल लेते हैं ऐसे ही स्नोर करते हुए, पर ट्रीटमेंट भी नहीं लेते हैं। एंड यू नो फॉर्चुनेटली उनको उतना कुछ फेटल साइंस होते भी नहीं है। बट देन हैव यू, what according to your, have you seen in your practice where sleep apnea, if it goes untreated, can actually have some fatal reactions too? Yes, we've seen, हम रोज देखते हैं, रोज देखते हैं ऑन अ डेली बेसिस। हम देखते हैं कि हम पेशेंट्स को एडवाइस किया गया था स्लीप टेस्ट करने के लिए, नहीं किया गया था, एक समय के बाद न्यूरोलॉजिकल स्ट्रोक, इस्कीमिक हार्ट डिजीज के साथ आ जाते हैं और तब करवाते हैं। Every day you're seeing वी this सीइंग पेशेंट्स एवरी डे। मैं नहीं देख रहा तो कोई ना कोई तो देख रहा है। Okay. तो ये काफ़ी कॉमन चीज़ है। साथ ही साथ हर एक इंसान जो स्नोर करता है उसको स्लीप एपनिया नहीं होता। that is right. इसके लिए शायद लोग इसको इग्नोर करते हैं, बट ये वही लॉजिक हो गया कि हर एक स्मोकर को कैंसर नहीं होता। इसका ये मतलब नहीं कि स्मोक करना नॉर्मल है या हेल्दी। वो एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है, एक्स नंबर ऑफ सिगरेट्स पर डे फॉर एक्स नंबर ऑफ ईयर्स इन एक्स परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन विल गिव राइज टू CA लंग। सिमिलरली स्लीप एपनिया हर एक स्नोरर को नहीं होता, बट इवैल्यूएट करना जरूरी है और अगर स्नोरिंग हो रही है तो चेक करना जरूरी है। What do you think about the lifestyle? Like how much role does it play to have? A massive role. Okay. एक विशियस साइकिल है या इसको आप विशियस वॉर्टेक्स बोल सकते हैं। स्लीप एपनिक पेशेंट है, दिन में थका हुआ है, सुस्त है, फ्रेश नहीं है क्योंकि उसकी रात की क्वालिटी ऑफ स्लीप खराब है, ब्रेन को कम ऑक्सीजन मिला है तो थका हुआ ब्रेन है। वो दिन भर एक्टिव कैसे रहेगा? एक्टिव नहीं रहेगा तो एक्सरसाइज लिमिटेशन होगी, एक्सरसाइज लिमिटेशन होगी तो मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो वेट अपने आप बढ़ने लगेगा। तो जब एक स्लीप एपनिक पेशेंट मशीन पे आ जाता है और एक्सरसाइज करने लगता है तो जो हम रिजल्ट देखते हैं वो समाउंट हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। That's correct. क्योंकि अब वो फ्रेश है, वो एक्सरसाइज भी कर रहा है। Correct. फिट रहना, एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। ओबिसिटी का डायरेक्ट रिलेशन है स्लीप एपनिया से, तो अगर आपका ओबिसिटी कंपोनेंट हट जाता है तो ऑटोमेटिकली स्लीप एपनिया के चांसेस सिग्निफिकेंटली कम हो जाते हैं। But what about those patients who are, you know, bread earners of the family, having sleep apnea, and as you said कि पूरे दिन drowsy feel होता है, but then they are fighting through it and still going to office work 9 to 12 hours and still not able to continue their daily activities. What about those? उनके लिए तो और ज़रूरी है इवैल्यूएट होना कि अगर वो ब्रेड विनर है, गॉड फॉरबिड अगर उनको कुछ हो जाएगा तो फैमिली का देखभाल कौन करेगा? Correct.
So for them to be fresh and to have an issue corrected, Hmm. nip it in the bud, diagnose it early and correct it early becomes all the more reason for them to be. That is Because वो correct. थका हुआ इंसान काम पे जा रहा Hmm. है, उसके पास ऑप्शन नहीं है, he has to go to work to Hmm. earn his bread, earn his bread, and he has to take care of his family as well. Once he's home, he's more irritable. He can't spend quality time with his family. So the time also which he's spending with the family is not the best because he's had a long day. He's tired throughout the day, and sleep apnea has contributed to that tiredness and made him more irritable. Yes. So interpersonal relations भी strain होते हैं. That's right. That's right. And do you have any lifestyle suggestions wherein along with the treatment, patient can have a good dietary support and can, hand in hand work with it? Counseling, educating the patient, a proper diet advice and exercise is mandatory for all patients. Okay. हम खाली मशीन देके नहीं छोड़ सकते. Correct. It's a हमें उनको holistic काउंसिल approach. करना है, Correct. होलिस्टिक अप्रोच होना Hmm. जरूरी है, समझाना है, एजुकेट करना है, और ना ही उनको उनके पार्टनर को भी या प्राइमरी केयर गिवर को भी. जब एक टीम वर्क होता है ना तो सक्सेस का रेट बहुत ज्यादा हो जाता है. कोई चाहिए आपको मोटिवेट करने के लिए या बताने के लिए आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं. तो उस समय सही डाइट बताना, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, आपके सिस्टम को लेके इंडिविजुअल होता है. इसको प्रिसिशन मेडिसिन बोलते हैं. एक Okay. वन शू डज नॉट फिट एवरीबडी. That's right. तो एक डाइट चार्ट पूरी दुनिया पे वैलिड नहीं होगा. Personalized चाहिए. इट हैज टू बी Correct. पर्सनलाइज. Correct. अगर कोई इंसान है वो सिर्फ रात में एक्सरसाइज कर सकता है तो वो रात में ही करेगा. आप उसको ये नहीं बोल सकते अपना पूरा रूटीन आप चेंज करके सुबह करो. That's right. That's right. सम That's एक्सरसाइज इज बेटर देन नो एक्सरसाइज. तो That's हमें right. उसके अराउंड रिवॉल्व करना है. हमें हम्म. थिंग्स उसके लिए इजी बनानी है. right. हम अगर थिंग्स उसके लिए डिफिकल्ट बनाते जाएंगे तो वो और हमसे दूर भागेगा. That's और right. जो चीजें हम आज करेक्ट कर पा रहे नहीं कर पाएंगे. अगर आज हमने थिंग्स उसके लिए इजी बना दी, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी वंस ही अंडरस्टैंड्स व्हाट वी आर डूइंग इज हेल्पिंग हिम, ही मे चेंज एंड ही मे बी लेस ऑब्स्टिनेट एंड बी मोर एक्सेप्टिंग टू थिंग्स. But we have a society where not everyone is fortunate enough to take all these benefits or Correct. matlab adhere to all these benefit. We have class of people, for them the affordability becomes an issue. Yes. For them looking after themselves as well becomes an issue. Yes. Which is why this becomes sometimes in the back seat. इसको लोग इग्नोर कर देते हैं क्योंकि अफोर्डेबल सोल्यूशन नहीं मिलता. पर ऐसा नहीं है. हमारे देश में इतने मेडिकल कॉलेजेस हैं और रेस्पिरेटरी मेडिसिन में या अलाइड ब्रांचेस में स्लीप मेडिसिन उतनी अच्छी तरीके से ही प्रैक्टिस किया जाता है. Okay. तो कॉमन आदमी भी मेडिकल कॉलेज या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके इसका इवैल्यूएशन कर सकता है. Okay. तो देयर आर प्रोविजन. जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट प्रैक्टिस में जाना है या Okay. प्राइवेट डॉक्टर के पास जाना है. गवर्नमेंट डॉक्टर्स ही उतने अच्छे, शायद बेटर भी होते हैं प्राइवेट डॉक्टर से, चीजें डायग्नोस करने और मैनेज करने. And when you come to the therapy, the machine part of it. द मशीन पार्ट, यस, मशीन्स आर कॉस्टली बट देयर आर इंडियन मशीन्स. चीजें मिल जाती हैं, रेंट पे भी मिलती है मशीन्स. Okay. पेशेंट्स कैन यूज इट फॉर रेंट. Okay. आप एक चीज समझिए, एक ग्राफ देखिए. अगर आपको एक फॉर एग्जांपल क्रॉनिक बीमारी हो जाती है तो उसकी दवाइयाँ और टेस्टिंग का खर्चा कितना होगा, Right. वर्सेस एक कंट्रीब्यूटरी चीज जो वो बीमारी को रोक सकती है, जिसका आपका लाइफ में डेली बेसिस पे कोई खर्चा नहीं है, वन टाइम चीज है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और वो 10-15 साल चलेगी आपकी. Okay. तो इन द बिगर रन Mhm. कॉस्ट बिकम्स अ वेरी स्मॉल थिंग. Okay. आपका पेनी वाइज स्मार्ट पाउंड वाइज फूलिश वाला किस्सा आ जाता है. Hmm. एक स्ट्रोक या हार्ट अटैक का खर्चा जी. कितना ज्यादा होगा, जी, और जी. अगर स्लीप एपनिया उस पे कंट्रीब्यूट करता जी. है तो क्या उसे हटाना जरूरी है? Correct. डेफिनेटली हटाना चाहिए. So one important advice that you would like to give to our viewers before we come to the closure. Don't ignore your sleep. Sleep is a very, very essential and important part of your life. 1/3 of your life is spent on your bed sleeping. So give it importance, respect your bed, respect your life. Ensure you get a good 6 to 8 hours of sleep every night, which is uninterrupted, which is peaceful. And if you notice any signs which are hampering your sleep, causing a disturbed sleep pattern, or your partner or spouse tells you the same, don't ignore it. Consult your physician or a sleep specialist for the same and get to the solution and the bottom of it. Thank you. So lastly, thank you so much for joining us and helping us spread the awareness, and the way patiently you explained every aspect of it. I know that how important is to be spoken about this topic is, and no one other than you can do the justice to it. Thank you so So much. thanks a lot again. Thank you. It was a pleasure being here and lovely interacting with you. Thank you. So thank you for watching our video till the end. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, so don't forget to subscribe to our channel and follow us on Instagram. It's One Life by Mankind Specialities, जहाँ हम बात करते हैं हेल्थ के बारे में. तो अब मिलती हूँ आपसे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में. Until then, stay informed, stay healthy.